हाँ जी, ओके, ऑल सेट। ओके जनाब, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस, कमेंट्स और कंसर्न्स, एनीथिंग? कुछ भी जाके रिवाइज नहीं किया, कुछ भी पढ़ा नहीं है, इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन सेक्शन। As we are meeting after a long time, to let me start from the day one. In this subject, electric circuit analysis part 2, we started to discuss and analyze circuits which are operated on an AC signal. So that's why it is called AC signal analysis as well. We start with the discussion that if we use phasors instead of routine sinusoid signals, then our mathematical life will be easy to solve the analysis. And as soon as we start phasor, we see this as well, that our differential integral equations were transformed in only j omega, right? Either we have to multiply j omega or we have to divide j omega, right? That is the ultimate benefit that we see when we were solving the AC signals by using phasors. The ultimate benefit, the next benefit, the other benefit was impedance. We got another term, impedance, which resolved our problem and which make we feel that we are solving the DC circuit. Okay, as we see that all the techniques and methods that we learned in the DC signal analysis or in ECA 1, that are all true. Either there was voltage divider, current divider, KCL, KVL, mesh nodal analysis, whatsoever that was, Thevenin theorem, superposition, that's all true for the AC signal as well. And thank God to impedance, thanks to impedance as well. Okay, after doing all this circuits things, we move forward to the AC power analysis. That what about the power if there is an AC signal? Remember, before that portion we were just dealing with the voltage or current. Okay, what's the value of voltage? How could we find out a current flowing in a load or in a specific component, etc. And we were using the methods. Same issue here. Same issue here or sinusoid signal that we have transformed in the phasor form. So we started with these expressions and find out the instant. Root mean square voltage means that amount of voltage which could a DC circuit produce. Okay, अगर हमें दो सर्किट्स का जो कि एक AC पर ऑपरेट हो रहा हो, एक DC पर ऑपरेट हो रहा हो और DC सिग्नल ने कोई वैल्यू दी हो, तो वो वाली वैल्यू AC सिग्नल कितना देगा, इस तरह का रिलेशन के लिए हमारे पास RMS वैल्यूज आती है. The other term was apparent power, okay, which deals only with the magnitudes of the voltage and current, kind of this expression. Okay, and in the same topic we encountered with the power factor. Okay, and we see that power factor and impedance of the load, impedance of the complete circuit, they are related with each other. Because power factor was cosine of phase difference of voltage and current, and the phase difference of voltage and current is also called impedance, a phase of the impedance. Okay, magnitude and phase part of the. So either we have impedance, a complex value of a phasor value of impedance, ठीक है, जैसे हमारे पास था कि इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हमने निकाल ली, या वो क्या था, आर थेवेनिन, जी थेवेनिन निकाल लिया. ओके, तब भी हम किसी सर्किट का पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, या हमारे पास डायरेक्टली वोल्टेज और करंट की फेजेस आ जाए तब भी हम निकाल सकते हैं पावर फैक्टर. ओके, पावर फैक्टर निकालने का और तरीका जो है वो आज के टॉपिक में हम भी देखेंगे, ठीक है. ओके जनाब, इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर टर्मिनोलॉजीज, वो टर्मिनोलॉजीज जो कि पावर को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. कामयाबी के बाद ECA 2 की फ़क्रिया पेशकश जो है वो कॉम्प्लेक्स पावर आ गई, और कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जनाब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है.
अगेन कि मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से बात हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स पावर वो है जो अब तक जितनी आपने टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देगी। ओके, या वो तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज़ कॉम्प्लेक्स पावर से आप निकाल सकते हैं। ये हम लास्ट सेक्शन में जाकर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो हम जो सफ़र है वो स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे स्टार्ट में जाकर इक्वेशंस लिखने का आप श्योर, ओमेगा टी माइनस होगा, ठीक है, ओमेगा की टर्म यहाँ पर, और कॉस का है लेट्स सपोज ये जो ऑपरेशन है ये कोसाइन भी हो सकता है। उसके बाद एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी को इन्वॉल्व करते हैं। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया था जिसके अंदर एक टर्म जो थी वो टाइम डिपेंडेंट थी और दूसरी टर्म जो थी वो टाइम इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, जो टाइम इंडिपेंडेंट टर्म थी वो आपके पास आपकी पावर एवरेज पावर के लिए इस्तेमाल हो रही थी। ठीक है, वो लेक्चर जाके आप एक दफ़े से दोबारा से देख लीजिएगा। तो अब हमारे काम की जो चीज़ है, फिर हमने उसका फेजर एक्सप्रेशन निकाला था, मैं अब वो लिखने लगा हूँ। ठीक है, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ थी मैं उस पर डायरेक्टली आना चाहता हूँ। ठीक, ओके, सो दैट वाज क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन याद? ओके, ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये आपके पास फेजर्स हैं। ये शायद हमने जब जिस दिन पहले दिन फेजर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि चूंकि किताब वाले ने तो बोल्ड लेटर्स यूज़ किए हैं टू रिप्रेजेंट द फेजर वैल्यूज़ या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ जो उसने यूज़ किए, सॉरी उसके लिए, तो हम जो है वो यूज़ नहीं कर सके, तो हम वो एक टिल्ड सा बना देंगे जिसका मतलब ये है कि ये जो है ये हमारी फेजर वैल्यू। ठीक है, सो दैट वाज, अगर मैं ये हाफ ख़त्म करना चाहूँ RMS वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, याद है रिलेशन क्या था? ठीक है, तो एक अंडर रूट इसका, एक अंडर रूट इसका, ठीक है जी, और वो फिर हम उसको आगे छोटा सा मैथ्स करके तो इसको ख़त्म करके हम वी रूट यूज़ करते हैं। ओके, एनीवेज दैट इज साइन ऑफ, एक सेकंड बस मुझे टाइपिंग करने दो, फिर इसके बाद हम जो है ना रिजल्ट्स पर आएंगे। तो आगे नहीं मैं जा सकता? अगर आपको याद हो तो जब हम ये वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे तो फिर हमने बात की थी कि 1/2 रियल पार्ट ऑफ, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक महदूद हो गए। ठीक है, कि अगर आपको एवरेज पावर निकालना हो तो आप हाफ लेंगे, जो भी सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड, और जो उनके फेजेस हैं उनको आप करेंगे। ठीक है, और कंप्लीट एक्सप्रेशन जो था वो ये था, विच कंटेन्स अ रियल टर्म एंड एन इमेजिनरी टर्म। ठीक, आज हम उस टॉपिक को जहाँ से हमने बात स्टार्ट की था, आज हम उसको कंप्लीट टच जो है ना वो देने लगे कि ये जो एक्सप्रेशन था आपका, इसको हम कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक, इससे पहले जो लास्ट लेक्चर थे अगर आप इन्हीं एक्सप्रेशंस को नोट करें तो अपेरेंट पावर की बात हुई। ठीक है, जिसको हमने एस से, सादा एस से, जिस तरह वो सादा नाम होता है ना, ठीक है, सादा बंदा भी होता है, इस तरह एक सादा एस की अब्दुल्ला बात नोट कर रहे हैं। ये एस जो है ये कॉम्प्लेक्स एस बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ। इससे पहले जो हमने एस जिसको हमने अपेरेंट पावर कहा था, ठीक, वो सिंपल फॉन्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, तो सादा फॉन्ट, सादा नाम, सादा इंसान और सिंपल फॉन्ट में अगर एस लिखा हो तो ये सारी सादगी को जाहिर कर रहा है। वो ये था।
क्यों भाई, कुछ कहना चाह रहे? नहीं और भी कुछ साथ भी है तो दिखा दो, बताओ यार, हमारे इल्म में इजाफा करना। ओके, अपीरेंट पावर की आपसे बात की गई, तो वो चाहे आपके पास रियल टर्म में से आ रहा हो चाहे इमेजिनरी टर्म में से आ रहा हो, आपके तो काम कुछ नहीं। हाँ, चाहे वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हो चाहे रूट मीन स्क्वायर की, आपका क्वेश्चन जैसा होगा, ठीक है। अगर वो रूट मीन स्क्वायर में सारी बातें कर रहा होगा तो आपको जवाब भी रूट मीन स्क्वायर में देना होगा, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा होगा तो आपको जवाब भी मैक्सिमम, तो जिस तरह का भी है, जो फर्क सिर्फ वो स्क्वायर रूट 2 वगैरह का है, या तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ठीक, वो उसके टॉपिक में हमने डिस्कशन किया। सो ये वो ऐसा, ठीक है। हाँ बोलो। दूसरी चीज ये थी पावर फैक्टर, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर चीज़ें वही वाली सारी पुरानी ही हैं, अभी नई चीज़ निकालनी है हमें, अभी हम बेसिकली रिवीजन के सेक्शन पर ही बात करते जा रहे हैं। ओके, सो अगर मैं वाइस वर्सा या रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहूँ तो अभी तक मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अपीरेंट पावर और पावर फैक्टर हो तो आप कॉम्प्लेक्स पावर निकाल सकते हैं, राइट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पावर निकालने के और ये टर्म्स निकालने के भी और तरीके भी हम देखने लगे। ओके, कि आपको किसी तरफ से भी अटैक किया जाए, कोई वेरिएबल्स हो कोई ना हो, तो आपने उसके साथ किस तरह से खेलना। ओके ओके जनाब, पावर फैक्टर के लेक्चर में ये वाली बात डिटेल में डिस्कस हुई और ज़्यादा ही डिटेल में डिस्कस हुई, राइट, याद है ना? दैट्स देयर, लास्ट टाइम आपने और अब्दुल्ला ने ही वो तरीका बताया था, ठीक है। यानी कि अगर आप नोट करें, इम्पीडेंस की डिस्कशन स्टार्ट करें, क्या मुश्तबा इम्पीडेंस क्या होता है अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना हो? नहीं यार, कितना बड़ा मसला नहीं, ओहम्स लॉ याद है, ये हिंट था। हाँ, तो इम्पीडेंस कैसे लिखते हैं? ओके, V इक्वल टू आई आर था ओहम्स लॉ, ठीक है। फिर जब हमने AC सिग्नल स्टार्ट किया, यानी कि ये वाला सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो भी जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की, सॉरी रिवीजन में बात की, तो हमारे पास एक और ब्लेसिंग आ गई थी, वेरी गुड। सो V इक्वल टू आई जी हो गया, तो इम्पीडेंस क्या होगी? यस, और अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करना शुरू कर दें, फिर इसका मतलब है कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उनके कुछ फेज होंगे। ओके, तो ये फेजेस अगर डिवाइड हो रहे हो तो इसका एक और तरीका भी होता है, डिवाइड मेरा, सॉरी वो भी चेंज हुआ ना, तो इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ जी जनाब, अगर दो फेज, दो एंगल्स डिवाइड हो रहे हों तो हम क्या करते हैं, एक और भी तरीका होता है इनको सॉल्व करने का, हम उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि थीटा वी ओवर थीटा आई है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। या फिर अगर दो फेजेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं कि हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। याद है ये बातें कि नहीं? थीटा वी मल्टीप्लाई बाय थीटा आई, तो इसका मतलब है कि मैं थीटा वी और थीटा आई को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और थीटा वी ओवर थीटा आई अगर डिवाइड हो रहे हैं दो फेजेस, तो इसका मतलब है कि मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, याद है? याद, हाँ भाई कुछ तो पक्की बात है। और फिर यहाँ पर भी माइनस, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, माइनस माइनस आएगा, तो फिर अब किसकी बात माने? हाँ भाई, मैं सुबह वोटिंग करा लें, क्लास में किसी और से पूछना चाहो तो कॉल अ फ्रेंड। हाँ ओके, हाँ साले, ये 7 करोड़ का सवाल चल रहा है, आप बहुत सोच समझ के आपने जवाब दिया।
हाँ भाई, इसकी बात मान के लॉक कर देना। गुड, ठीक है। तो फिर अब क्या करें यार, अक्सर बात नहीं मान रही हमने फंडामेंटल। ठीक है, फेजर्स, फेजर्स में ये था कि जो आपके एंगल्स हैं या जो आपके फेजेस हैं उनको आप डिवीजन की बजाय सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई की बजाय ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सारी डिस्कशन में जो हमारे काम की चीज़ थी वही, ठीक है, जो ये बात कर रहा था शुएब, नहीं अवैस, जो अवैस बात कर रहा था कि पावर फैक्टर निकालने का कोई दूसरा, मिसाल के तौर पर आपको एक सर्किट दे दिया जाए, लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है ना, जो बातें कर रहा हूँ, रिलेटिवली हो सकता है कि उसकी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना आसान हो, जी थेवेनिन करना आसान हो उसका, कि सारे सोर्सेज को ख़त्म किया, जो सीरीज पैरेलल या डेल्टा वाई की कॉन्फ़िगरेशन रह गई उसको समराइज किया और एक इम्पीडेंस निकाल। ओके, वो जो इम्पीडेंस आई उसका फेज इम्पीडेंस जो आएगी वो कॉम्प्लेक्स आएगी। ठीक है, उसका फेज उठाया, उसको साइन कर दिया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। मुझे साथ चल रहे हो कि नहीं, पक्की बात है। ओके, तो इसीलिए हमारे पास पावर फैक्टर निकालने के दो तरीके अभी तक हमने पहले डिस्कस किए हुए, वो सेम यहां पर चल रहे। ओके, तो अब अगर हम ये वाली डिस्कशन आगे कैरी ऑन करें, इधर ले जाते कि अगर मैं अपनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू इस फॉर्मूले की बात करूं और वो इंपीडेंस मैंने मिटा दी, इस एक्सप्रेशन को यानी कि कॉम्प्लेक्स पावर जो हमारा टॉपिक है, जो जनरल हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक, उसकी एक साइड ये वाली होगी जिस पे अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, दूसरी साइड ये वाली होगी। इस साइड का रिलेशन जो है वो इम्पीडेंस के साथ है। अब मसला ये है कि मैं कॉम्प्लेक्स पावर को इम्पीडेंस के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ओके, कि अगर आपके पास इम्पीडेंस की इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ही ये है कि आपका लोड जो है उसकी इम्पीडेंस और आपके पावर का रिलेशन है। भाई इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो, और आपकी अगर आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, ये तो बातें आपको पता है ना कि एसी अगर चल रहा है तो उसको कितनी पावर चाहिए, बल्ब चल रहा है तो उसको कितनी पावर चाहिए। तो लोड मीन्स उसकी इम्पीडेंस और पावर का रिलेशन, उस पर तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक एग्जांपल भी हमने दे दी। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप पावर की बात कर रहे हैं और आप ये टैग लगा रहे हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, ओके, तो ज़रूरी है कि वहाँ पर आप इम्पीडेंस का जिक्र करें। बात समझ आ रही है, पक्की बात है कि नहीं? उमैर कुछ चल रहा है साहब। इसीलिए और फ़कत इसीलिए हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पावर को इम्पीडेंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन अगर आप वहाँ पर लेके जाते हैं, I इज इक्वल टू वी ओवर जी या V इज इक्वल टू आई ओवर आर, आई ओवर जी, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स पावर के एक्सप्रेशंस बन जाएंगे, दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट, जो इम्पीडेंस आएगी उसका कॉन्जुगेट। क्यों भाई, वही सर्किट है अभी जो हमने एग्जांपल में लिया हुआ था, और आपको उसकी कॉम्प्लेक्स पावर निकालना है। ओके, तो आपने क्या किया, अगर उसकी इम्पीडेंस आपको मालूम हो गई या उसकी इम्पीडेंस गिवन थी, तो बजाय इसके कि आप उसको पूरे का पूरा सॉल्व करें और मुख्तलिफ तरफ जाएं, आपने जस्ट ये दो वैल्यूज की हैं दैट। या फिर अगर करंट की वैल्यू गिवन थी तो क्या हो जाएगा, ये सारी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज चल रही हैं, अगर मैं कहीं पर टाइपो एरर कर दूं, मिस कर दूं, तो उसके लिए माफ। ओके, सो आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर निकालने का डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मुख्तलिफ फार्मूलाज, मुख्तलिफ मेथड्स आ रहे हैं। इम्पीडेंस की तरफ से अटैक करना अगर मुश्किल हो रहा है तो कोई नहीं कह रहा कि अगर उसकी इम्पीडेंस निकालना ही मुश्किल हो रहा है तो कोई नहीं कह रहा कि ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, उसको कॉम्प्लेक्स पावर चाहिए। ठीक है, रिलेटिवली अगर वोल्टेज और करंट और उसके फेजेस की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल रही है, या फिर ये वाले पैरामीटर्स आपको पता है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर उसने दे दिया कि जनाब अपेरेंट पावर इतनी है और पावर फैक्टर इतना है, कॉम्प्लेक्स पावर निकालना है, तो आपको किसी ने नहीं काटा कि आप इस तरफ जाएं कि उस सर्किट को सॉल्व करें, उसकी इम्पीडेंस निकालें।
ठीक है, और उसमें से फ्लो का मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस या वी थेवेनिन करते हुए उसमें से जो है वो इम्पीडेंस निकालते थे। सो इट विल टोटली डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आपको कौन से फार्मूला इस्तेमाल करना है। अभी हम एग्जांपल एक करेंगे सर्किट की, तो फिर और बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हाँ भाई चलें आगे चलें अहमद। ओके, सो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे कुछ ना कुछ तो मिटाना पड़ेगा। वो उधर लिमिटाइज कर दिया, मैं तो बहुत हैप्पी हो रहा था कि वो वाला साइड हम यूज़ कर सकेंगे। ओके, तो हमने कहा कि जनाब हमारे पास इम्पीडेंस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाले एक्सप्रेशन लिमिट आने वाले थे। जी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और डेफिनेशन कार्टेशियन में अगर हम बात करें तो। ठीक, अब हम कॉम्प्लेक्स की इस तरफ चलेंगे। पहले हमने इस तरफ की बात की, अब हम इस तरफ की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। राइट, अभी जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, लेट्स सपोज, ठीक है जनाब, वो जहन में रखें कि कॉम्प्लेक्स पावर जी रखता है, जी का किरदार है। ठीक है, यही है या वो आई वाला है? ठीक है, ओके। अब जब ये यहाँ पर आप पुट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर आपके पास ये वाली चीज़ आ गई, या इससे आसान एक्सप्रेशन जो था वो करंट वाला था, जो आपको सामने चीज़ नजर आती है। ओके, ये वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर का एक्सप्रेशन आएगा वो भी इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि उसका कुछ रियल कंपोनेंट होगा और कुछ इसका इमेजिनरी कंपोनेंट। ठीक, ये जो अब आपके पास रियल कंपोनेंट है, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो इस रियल कंपोनेंट को हम यहां से P प्लस Q से represent, ये नया एक्सप्रेशन। ठीक, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं इसके साथ, तो हम ये बात कर रहे हैं तो साइन ऑफ, राइट, प्रीवियसली अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर। ठीक है, इसको हम जो है वो एक और नाम जो यहाँ पर दिया जा रहा है रियल पावर के साथ P। ठीक, ये वो पावर है या ये वो कॉम्प्लेक्स पावर का पार्ट है जो कि आपका लोड डेसिपेट करता है, जिसको कहते हैं कि रियल पावर यूटिलाइजेशन। ठीक है, जो हकीकी हकीकी के साथ अब आज़ादी का लफ्ज़ मुंह से निकल जाता है, क्या करें तुम। हकीकी जो पावर जो आपके पास चल रही है वो कॉम्प्लेक्स पावर का ये पोर्शन आपको बताता है। ठीक, जो कि रेजिस्टिव लोड होगा, आपकी इंपीडेंस का रेजिस्टिव पार्ट होगा, लोड इटसेल्फ, या फिर अगर आपकी इंपीडेंस जो है वो एक रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर पर है तो रेजिस्टेंस का जो पार्ट है। ओके, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये आपके सिस्टम की रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट करके फिर अपनी बात। ठीक, और ये आप जानते हैं कि जो आपके रिएक्टिव कंपोनेंट्स थे कैपेसिटर इंडक्टर, वो एनर्जी स्टोरेज के काम, वो एनर्जी डेसिपेट नहीं कर रहे थे लाइक रेजिस्टर, पुरानी बात ये आपको पता। ठीक है, ये क्या करते हैं कि एनर्जी का टू एंड फ्रो, कि एनर्जी सोर्स से लोड और लोड से सोर्स पे किस तनासुब से आ जा रही है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका ये वाला पोर्शन देता है, जो कि अब आपके पास Q की जो वैल्यू आ रही है वही अपेरेंट पावर नई थी। ठीक, सो
अब यहां से आपके पास फार्मूलाज की भरमार आ, अगर मुझे लिखने का मौका मिले तो लिख दूं। हाँ, पहले यही वाली कि आपको चाहे यहाँ से Q मिल जाए चाहे P की वैल्यू मिल जाए, आप पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं और आप अपेरेंट पावर भी निकाल सकते हैं। एग्रीड? उमैर इधर ध्यान देना। चाहे आपको कॉम्प्लेक्स पावर का रियल पार्ट मिल जाए चाहे आपको कॉम्प्लेक्स पावर का इमेजिनरी पार्ट मिल जाए, ओके। आप इससे पिछली जो टॉपिक की क्वांटिटीज थी, जो पिछले टॉपिक से इनके अपेरेंट पावर या पावर फैक्टर वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल उस लाइन का उलट है जो हमने स्टार्ट में कही कि अगर आपको अपेरेंट पावर और पावर फैक्टर मिल जाए तो आप कॉम्प्लेक्स पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी बात को उलट कर रहे हैं कि अगर आपके पास P का पोर्शन आ जाए, P की इंफॉर्मेशन आ जाए या आपके पास Q की इंफॉर्मेशन आ जाए तो आप उसे पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हाँ जी, हमने यहाँ पर ये वैल्यूज पुट की। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ बात, ठीक है, मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाना चाहिए आए आर बन जाए, ठीक है। स्केयर और रूट में स्केयर वगैरह अपने साथ प्लस आए और एच, ठीक है। ये आपके पास रेजिस्टिव पोर्शन है, ये रिएक्टिव पोर्शन है, ठीक है। पावर जो है वो इसके अंदर डिसिपेट होती है, ये वो पावर है जो कि हकीकी तौर पर आप यूटिलाइज होती है तीनों, ठीक है। जबकि ये वो है जो कि आपका रिएक्टिव लोड बनता है, ठीक है। ये पावर डिसिपेट नहीं हो रही कैपेसिटर के अंदर या आपके इंडक्टर के अंदर, पावर डिसिपेट नहीं हो रही उस एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। किसी टाइम पर उन्होंने एनर्जी स्टोर की और किसी टाइम पर उन्होंने वापस एनर्जी सोर्स को ट्रांसफर की। टू एंड फ्रो मोशन जो पावर की जो है वो इनके जिम्मे, ठीक है। एनर्जी स्टोर कर रहा है तो उसमें उसको यूटिलाइज भी तो करना है ना कहीं पर, ठीक है। बहुत बड़ी मिसाल अगर हम ले लें अपेरेंटली तो आपका यूपीएस हो गया, ठीक है, कि उसने एनर्जी करनी है। उसके बाद अगर हम आइडियल सिचुएशन में करें तो वो डिसिपेट नहीं कर रहे। बात समझ आ रही है? ओके, तो ये दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हो। अब इन दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर हम कंपेयर करें अपने इस एक्सप्रेशन से जो कि कॉम्प्लेक्स पावर का ही एक्सप्रेशन है, ओके, तो फिर ये वाली जो रियल टर्म थी इसको हमने रीनेम कर दिया पी से, ठीक है, किलोवाट वाले से, और इसको हमने रीनेम कर दिया टर्म क्यू से, रिएक्टिव लोड आपके पास आ गया। इसका जो यूनिट है kVr है, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट दिस टर्म। VA है वही वॉट ही, ठीक है, लेकिन चूंकि टर्म्स हम डिफरेंट दे रहे हैं इसलिए हमने उनके यूनिट्स भी ज़रा थोड़े डिफरेंट करने थे। बात वही वॉट वाली ही थी लेकिन VA कर दिया, ये VAR कर दिया। इन अदर वर्ड्स अगर आपको कोई कहे कि ये इतने kVr की पावर है तो आपके जहन में फ़ौरन से आएगा कि ये रिएक्टिव पावर। साथ ही साथ एक और चीज़ फ़ौरन जहन में आएगी कि ये कैपेसिटर या इंडक्टर की बात कर रहे हैं, ओके। यानी कि एक इंजीनियर होने की हैसियत से हमने बिल्कुल एंड प्रोडक्ट एंड तक जाना है, अपेरेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। VA की बात हो रही है तो आपके जहन में आएगा कि ये अपेरेंट पावर की बात कर रहा है, ओके। यानी कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये रेजिस्टिव लोड की बात कर रहा है या ये बात कर रहा है उस पावर की जो कि यहाँ पर यूटिलाइज होनी है, ओके। और पावर के कुछ कंपोनेंट्स भी हैं जो कि साथ इसके कनेक्टेड होंगे। VA की बात से आपको ये सारी कहानी सामने आ जानी चाहिए, ठीक है। जब वो वॉट्स की बात कर रहा है, फेजर्स की, AC की बात कर रहा है, तो फिर आपके जहन में आएगा कि अब ये कॉम्प्लेक्स पावर की बात है, ठीक है भाई। तो जस्ट यूनिट से आपके जहन में पूरी पिक्चर कैसे बनेगी उसको हम कुछ समझाने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम फॉर्मूलास की बात करें तो
ये जो आपका है पार्ट क्यू वाला जो है, उस तरफ नहीं जा सकता मैं। साढ़े बोलो मर्जी जाओ है, ये कहना चाह रहा है। इधर आ जाओ अगर वो कंफर्टेबल नहीं है उस तरफ। ओके, ये मैं रेस करता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ क्यू, आप ये देख सकते हैं कि जो आपका लोड है वो क्या है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ठीक है। पावर फैक्टर से भी आप ये देख सकते हैं कि आपका जो लोड है वो रजिस्टर है, कैपेसिटर है या इंडक्टर है। एग्री करते हैं आप इन दोनों बातों से? अच्छा, क्यू वाली बात पे तो अभी हम आते हैं। पावर फैक्टर से आप ये देख सकते हैं कि आपका जो लोड है वो रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। ये रही पावर फैक्टर की इंफॉर्मेशन। पावर फैक्टर आपको वोल्टेज के फेज की इंफॉर्मेशन और करंट के फेज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। वेरी गुड। बहुत पहले जब हमने रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की बात की यहाँ पर, तो हमने कहा कि इंडक्टर वो कंपोनेंट है जिसमें वोल्टेज और करंट का फेज इक्वल होता है, ठीक है। हाँ, रजिस्टर वो कंपोनेंट है जिसमें थीटा वी और थीटा ए बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। ओके, तो अगर कोसाइन 0 किया जाए तो क्या वैल्यू आएगी? पावर फैक्टर अगर आपको बताया जाए जनाब ये एक कंपोनेंट है, ये एक लोड है, ये पंखा है जो कि हमने अपने सर्किट के साथ लगाया है और इस पंखे का पावर फैक्टर 1 है, तो आपके जहन में क्या पिक्चर बनेगी? क्यों भाई, यहाँ तक पहुँचे हैं मुश्तबा, शुएब? ठीक है, ये बात हम पहले से देख चुके हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमें ये पता है कि कैपेसिटर जो है उसमें करंट लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है या करंट लैग करता है। अगर हम एक ही टर्म को पकड़ लें, इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। यहाँ पर अगर मैं पावर फैक्टर के लिहाज से बात करूँ, करंट लीड करने का मतलब है कि ये ज़्यादा वैल्यू होगी, ये 10 है तो ये 15 होगी, ठीक है जी। नेगेटिव आ गया वो जो भी टर्म, सॉरी, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ ये पता चले कि इन दोनों के फेजेस जो हैं वो नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट मींस, ठीक है, कैपेसिटिव। कैपेसिटिव का मतलब है कि V इज ग्रेटर, सॉरी करंट। इंडक्टर का मतलब है कि करंट लैग कर रहा है। तो अगर ये टर्म पॉजिटिव आ जाती है, 15 माइनस 10 टर्म आ गई पॉजिटिव, ठीक। अब ये मुझे पता था कि इंडक्टर में करंट लीड करता है, तो लोड जो मेरा है वो इंडक्टिव लोड हो गया। मुश्बा नहीं कहीं रह गए पीछे, ठीक है। क्यों भाई, अहमद अहमद ये अली, मोहम्मद अली, ठीक है। तो ये तो एक तरीका था जिससे हमें पता चल रहा था, पावर फैक्टर की बात हो रही थी, पावर फैक्टर से हमें ये पता चल रहा है कि लोड की इंफॉर्मेशन क्या है। पावर फैक्टर हमें बता रहा है कि आपका लोड जो है वो रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, रिएक्टिव लोड जो है, सॉरी रिएक्टिव पावर जो आपकी है, ये भी हमें यही इंफॉर्मेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन इन्वॉल्व है। तो साइन का नेगेटिव एंगल का साइन लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही निकल आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव का साइन लेते हैं तो वो नेगेटिव निकल आएगा, तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, ओके। यानी कि कैपेसिटर के केस में जो हमारी कॉम्प्लेक्स पावर की इक्वेशन बनेगी वो, सॉरी एक और एंगल आ गया। कॉम्प्लेक्स पावर की अगर इस तरह की इक्वेशन आपको नजर आए, ये नेगेटिव,
जो कि चीख चीख के कह रहा है कि आपका लोड जो है वो कैपेसिटिव है, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव आएगा ही तब जब ये साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। साइन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब ये टर्म ग्रेटर होगी। ये टर्म ग्रेटर किस सूरत में होगी? जब आपके पास कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट की अमाउंट ज्यादा होगी। ओके, सो देयर आर क्वेश्चंस के पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग, ओके, उसके लिए हम आपको तैयार कर, ओके। ऑन द अदर हैंड P प्लस जे क्यू, ये जो अमाउंट है ये पॉजिटिव हो, कब आएगी? जब साइन का आर्गुमेंट पॉजिटिव हो। साइन का आर्गुमेंट कब पॉजिटिव होगा? जब वोल्टेज फेज का वोल्टेज का फेज जो है वो ज्यादा होगा। और कौन सा कंपोनेंट है जहां पर वोल्टेज का फेज ज्यादा होता है? इंडक्टर, हमारे पढ़े हुए 3। तो हमने सिर्फ ये सिंबल देखकर कह दिया कि भाई ये जो पावर है ये इंडक्टिव लोड के अक्रॉस है, ठीक। अगर ये पावर है ही रियल, ओनली रियल, तो हमने क्या दिया? रेजिस्टर। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन जीरो है। ये जीरो तब होगा जब साइन की वैल्यू जीरो होगी। साइन की वैल्यू जीरो कब होगी? जब ये और ये दोनों बराबर होंगे, और वो हमें पता है कि वो रेजिस्टर केस में होगा। ओके, सो रिएक्टिव पावर की इंफॉर्मेशन से आप पावर फैक्टर की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। आल्दो आप रियल पावर से भी पावर फैक्टर की इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, आल्दो आप इंपिडेंस से भी, वो किधर गया, पावर फैक्टर की इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, लेकिन पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग के लिए आपको इधर का सहारा भी लेना पड़ सकता है। ओके, यहां से भी आप निकाल लेंगे लीडिंग और लैगिंग, अगर सिर्फ ये दो फेजेस ही आपको गिवन, ठीक है। यानी कि सवाल बिल्कुल ही सादा है, सवाल करने वाला बिल्कुल ही सादा है कि उसने आपको वोल्टेज की अमाउंट दे दी और उसने आपको करंट की अमाउंट दे दी, फेजर वैल्यूज दे दी, और पूछ लिया कि बताएं कि पावर फैक्टर लीडिंग है या लैगिंग है, तो आपने सिंपल सा ये वाला काम कर, ठीक है। ऐसी सादगी उसने आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में दिखाई हुई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जबकि उसने आपके इंस्ट्रक्टर के कान में कहा हुआ है उसको फोन करके कि इतनी सादगी आपने नहीं दिखाई, ठीक है, तेन कसम में दूंगा सादा है। ओके, बात समझ रहे हैं ना आप? और जज्बात, ओके, हाँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ओके, ठीक है। अब्दुल्ला, सॉरी मुश्तबा, कहाँ हो? ओके, ओके, सो अब वो जो हम बात कर रहे थे कि जो हिडन, हमने एक बात की कि अच्छा ये हो तो वो निकाल देंगे, वो हो तो ये निकाल देंगे, उसको उसने आपके टेबल, एक टेबल बना के ना समराइज किया हुआ है। तो इससे पहले कि मैं एग्जांपल्स पर जाऊं, मैं ये टेबल मींस कि ये फार्मूलाज यहाँ लिखना मुनासिब समझता हूँ। ओके, तो जनाब अगर अपेरेंट पावर की वो डिस्कशन कर दें, जिसको वो सादा एस से रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वो आप मुख्तलिफ तरीकों से निकाल सकते हैं। उसके मुताबिक वो आप कॉम्प्लेक्स पावर के एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये ज़रा थोड़ी ध्यान से टेबल रीड करेंगे तभी आपको समझ आ जाएगी, तो हम थोड़ा सा ज़रा थोड़ा बता भी देते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास ये वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स पावर आपके पास है, उसने ये पूरी आपको एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, और उसने पूछ लिया कि जनाब जो है हमारे पास अपेरेंट पावर निकालें आप, सादा एस, ठीक, तो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है वो तो वहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है जनाब। या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके, उसने वही कॉम्प्लेक्स वोल्टेज दिया हुआ आपको, उसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो आपके पास ये आ गई। अगर उसने आपको ये डायरेक्टली नहीं दी तो ओके, ठीक है जी। या फिर P और Q की
हाँ जी, अगर उसने कॉम्प्लेक्स पावर आपको दे दी है और सादा पावर को पूछना चाह रहा है वो, यानी कि अपेरेंट पावर की बात कर रहा है, तो आप इस एक्सप्रेशन की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, इस एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पी स्क्वायर, ओके, दिलो दिमाग खुल रहे हैं, हाँ भाई मुश्तबा, अब्दुल्ला, इनमें से कोई भी तरीका आ सकता है किसी भी तरफ, वो आपके साथ ऐसे भी खेल सकता है कि आपको अपीयरेंट पावर दे दे और ये दे दे और ये मांग ले, ठीक है, अब उसके ऊपर डिपेंडेंसी चल रही है, बात समझ आ रही, मसले की नज़ाकत, ओके, तो किसी भी तरीके से वो चल सकता है आपके पास, या आपके सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू ही गिवन नहीं है और आप कह रहे हैं ये सर्किट सॉल्व नहीं हो सकता, सर ने कुछ वैल्यूज गिवन नहीं, जबकि उसने क्या किया, इनडायरेक्टली आपको ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी, तो अब आपने खुद ही वहां से ये वाली वैल्यू निकाल ली, चल रही है बात कि नहीं, ठीक है, ओके, सो अभी भी इसके अंदर बहुत सी हिडन चीजें जो कि मैं एग्जाम के लिए बचा के रखना चाहता हूँ। टाइम क्या है हमारे पास, ओके ओके सॉरी, मैं वो 10 के लिहाज से अपेरेंट पावर की बात उसने की है, सॉरी, रियल पावर पी, ये जो हमारे पास रियल पोर्शन था ये वाला पूरे का पूरा, ठीक, इसके कनेक्शन वो कर रहा है जनाब, एक तो वो सीधा सा फॉर्मूला वहां से उसने उठाया, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है जी, सीधी सी बात जो कि हमने डेफिनेशन में भी यूज की, पी ये हमारी रियल टर्म, ओके, उसके अलावा वो कहता है कि जनाब अगर आपके पास अपेरेंट पावर आ जाती है, ओके, और आपके पास पावर फैक्टर आ जाता है, तब भी आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहीं पर भी आप भूल सकते हैं कि जनाब, भूलते जनाब यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि अगर वो पावर फैक्टर मांग लेता है फॉर एग्जांपल, और आपके पास उसने इनडायरेक्टली अपेरेंट पावर और ये एस की इंफॉर्मेशन दे दी, तो फिर आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं बगैर इम्पीडेंस निकाले या बगैर सर्किट को सॉल्व किए, ठीक है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, एस की इंफॉर्मेशन जो है वो आप निकाल सकते हैं अगर आपको पावर फैक्टर और अपेरेंट फैक्टर की वैल्यूज की बात, ओके, रिएक्टिव पावर क्यू की बात, एक तो बहुत सीधा तरीका बाय डेफिनेशन कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर गिवन है तो जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो आपका रिएक्टिव पावर, दूसरा तरीका अगर आपके पास अपेरेंट पावर गिवन है और पावर फैक्टर भी गिवन है तो भी आप क्यों निकाल सकते हैं, ठीक है, बट दिस टाइम साइन कीजिए, ठीक है, पावर फैक्टर की बात ले आया जनाब वो, जो अभी अभी हमने एक दो बातें बीच में की, पी ओवर एस कर दें अगर आप, पावर फैक्टर का आखिरी जो अभी तरीका, एक दो पहले हमने बात कर ली कि आपके पास वोल्टेज आ जाए या करंट आ जाए, फेजर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, फेजर वैल्यू ऑफ करंट आ जाए तो आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, आपके पास इंपीडेंस आ जाए तो फिर आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, अगर आपके पास रियल पावर और अपेरेंट पावर की इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, पी ओवर क्यू नहीं है, पी ओवर एस, ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या थी, एस ओवर कॉस कॉस वैक्टर, इनवर्स ऑफ
ये अब ले लें कोसाइन, कोसाइन को खत्म करें ना, तो ये कोसाइन ऑफ दैट आ जाएगा। ओके, सो पावर फैक्टर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या अगर आपके पास क्यू है तो आपने देखना वो साइन के साथ आएगा। ओके, सो दीज आर द, या यही वाली चीज एंगल ऑफ इम्पीडेंस, ठीक। तो इस तरह से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो उसने कहा कि कॉम्प्लेक्स पावर जो है वो आपको जितनी भी आपने पावर्स डिस्कस की हैं उन सब की कंबाइंड या कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। और ये आखिर में उसने सारे फार्मूलाज एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके इंगल मिंगल करवा के अपने इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई करने की कोशिश। ओके ओके जनाब, हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की। गेटिंग बोर? हाँ, ओके गुड। हाँ जी मुश्तबा, यार की बात करो यार। कहाँ से आए हो भला, कहाँ से ताल्लुक है? मुल्तान से। कितने किलोमीटर? 177 किलोमीटर से तुम यहाँ खामोश बैठने के लिए आए? तो फिर बोल के लब आजाद है तेरे। नहीं, अगर तुम कामयाब नहीं हो रहे तो बताओ ताकि हम इसको दोबारा से करें। नहीं नहीं कोई मसला यार, तुम्हारी वजह से क्यों सबका यार, जेड़ा पनोलाल है। अगर कोई चीज आपके कैनवस में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि ओके हाँ, ये एक एंगल हो सकता है कि अगर आप ये समझते हैं कि मेरे कैनवस में इशू है ओनली मी, लेकिन मोस्टली होता ही है कि हर बंदा ये समझ रहा होता है ना कि मेरे ही कैनवस में गलती, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू होता है बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी को और भी समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल में तो ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए, ठीक है। कि अगर कोई सिंगल पर्सन भी ये समझ रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि क्लास में किसी को समझ नहीं आ रही। इसी चीज़ को हम एक और तरीके से देख लें कि आपने तो अपने हिस्से की फीस भरी है ना, अच्छा तरीका नहीं है वैसे लेकिन फिर भी, तो आपको तो तो हर फर्द है डिस्कस कर सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। ओके, तो टीचर्स शुड ट्राई हिज बेस्ट। अगर बात ठीक है तो फिर ये हो सकता है कि अच्छा यार बाकी लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन एट द फर्स्ट अटेम्प्ट आपको ये नहीं सोचना चाहिए, ये क्लेम नहीं करना चाहिए। ओके, ये बात की बात हो रही है ना। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.12 की बात हो रही है। तो यार आप लोगों को हेजिटेंट नहीं होना चाहिए, यू आर इन थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। अब आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप अपने हक के लिए या अपनी जो क्या कहना चाहिए मुनासिब लफ्ज़ के राइट, हाँ हक, आप अपने लिए भी आप डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं जनाब ये ऐसा नहीं होगा, बाकियों का बाकी जाना। ओके, मैं और हम में डिफरेंस, जब आप इसको इंगल मिंगल करेंगे तो फिर इशू होगा। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको हम के बारे में सोचना है, राइट। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर आपको मैं के बारे में सोचना है, जहाँ पे आपको हम के बारे में सोचना है, मैं के बारे में सोचना है। और जहाँ पर आपको मैं के बारे में सोचना है वहाँ पर आप हम के बारे में सोचना, ठीक है जी। मैं अकेला सच बोल के क्या करूँगा, हम सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं के बारे में ही सोचना है। मैं अकेला असाइनमेंट कॉपी नहीं करूँगा तो क्या आ जाएगा, हम सब कॉपी कर रहे हैं। ओके, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं की बात, ओके। हम की बात कहाँ पर आ जाएगी, हम सब का क्या होगा अगर मेरे जैसा टैलेंटेड बंदा जो है वो जाकर किसी और दुनिया में सर्व करेगा। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हम एंड मैं। तो आपको कहाँ पर हम इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हम के बारे में सोचना है, और कहाँ पर आपको मैं के बारे में सोचना है। तो आप अगर इस बारे में क्लियर होंगे तो भी हमारे या मेरे कुछ मसाइल हल हो सकते हैं।
ओके, सो 11.12 में वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोगों से, और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो ऑब्वियसली बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि ये चीज़ें फाइंड आउट करें, अगर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहते, तो आपको रोक तो नहीं सकता, ठीक है, किसी का जोर तो नहीं है ना, ज़्यादा क्या होगा, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। ओके, ठीक है, ओके, सो इट्स टोटली अप टू यू। बहरहाल चले वापस आते हैं। सो a sinusoidal source supplies 100 kVr। स्टेटमेंट पे आपने एक और किया, a sinusoidal source, AC सोर्स, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट की बात, सप्लाइज 100 किलो, 100,000, काफ़ी ज़्यादा हो गया, VAR। हमने दरमियान में बात की कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसने डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल कर लिए। R स्टैंड फॉर रिएक्टिव, रिएक्टिव फॉर Q। सो इसका मतलब जो मुझे जल्दी से समझ आया, एक दो मतलब, वो ये कि 100 kVr इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स पावर के इमेजिनरी पार्ट आर, ठीक, या फिर ये किसी कैपेसिटर या इंडक्टर की बात कर, रिएक्टिव कंपोनेंट वो। ओके जनाब, आगे चलते हैं। पावर टू लोड, लोड की इंफॉर्मेशन आ गई, कॉम्प्लेक्स लोड दिया उसमें,